learn about the next chapter because till now, as per my understanding, we have already done about the chapter number 13. But still, if anyone having any doubts, we can clarify it. If anyone having any doubts in any particular question or any particular topic, we can discuss that. So the next chapter which we have is our heritage. Okay. So India is also known as for this heritage, different rich heritage of India. There are lots of places. Okay, historical places are there. So India is also known as the historical monuments, historical places for the historical places. So about those all places, so we will learn in today's classes, right? So this is the chapter number 13. Everyone take out chapter number 13. So basically in this chapter we will learn some famous places, some famous monuments in different parts of the इंडिया में जो भी प्लेसेस है जहाँ पे मान लो आप लोग बाद में कभी जब जाने का मन करेगा तो विजिट कर सकते हो इस तरह का जो प्लेसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है So first most important thing if we talk about which we have in our book given three places. One is Ajanta Caves and another is Jal Mahal and another is Agrasen की वॉली तो इस तरह से तीन प्लेसेस का नाम दिया गया है इसमें से आपको कौन सा लगता है या क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस है ये जो है which one among these are is the historical places of India इसमें से कोई एक होगा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होगा वो कौन सा है which one is so if we talk about the historical places so among this which one is the historical places over here Ajanta caves one is the Ajanta caves another is the Jal Mahal and the next one is the Agrasen की बौली ये तीन प्लेसेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि ये तीन प्लेसेस में से कौन सा प्लेस है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में आता है जस्ट ए मिनट ओके So, do you all know about the UNESCO? UNESCO, UNESCO. UNESCO जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या करते हैं ना ये रिसर्च करते हैं ये फाइंड आउट करते हैं कि कुछ कुछ प्लेसेस के बारे में और उसको कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को जो है ये ऑफिशियली ये अनाउंस करते हैं कि दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यूनेस्को द्वारा जो जो कुछ लोकेशंस है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है तो इन दिस क्लास स्पेशली यू विल लर्न अबाउट दोज प्लेसेस ओके सो यूनेस्को का समटाइम आपको फुल फॉर्म वगैरह पूछा जा सकता है सो यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओके तो ये क्या है कि ये इस तरह का हिस्टोरिकल प्लेसेस को या साइंटिफिक प्लेसेस को रिसर्च करके जो है फाइंड आउट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द अजंता केव्स राइट सो यहाँ पे जैसे कि कुछ वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में दिया गया है जैसे अजंता केव्स है देन मोनामेंट्स ऑफ हम्पी देन हुमायूंस टॉम एंड देन सन टेम्पल okay so fatehpur sikri so these are the some buddhist monuments so these are the some places which are the world heritage sites of india which we have okay so nalanda as like in bihar
we know Nalanda is there. Okay. So if we are talking about the books which we have, is the first about the Ajanta caves. Caves मतलब पता है सबको क्या होता है? Ajanta caves. What do you mean by caves? CAVES. Caves. Anyone know? Can you all hear me? मेरा आवाज आ रही है सबको? हाँ, केव्स का मतलब होता है ना गुफा। हिंदी में हम लोग जो गुफा जानते हैं ना, सुड़ंग टाइप का जो होता है, तो दैट इज कॉल्ड द केव्स। तो यहाँ पे ये जो द फर्स्ट which we are discussing about the Ajanta caves, which you can see, this is the place where Aurangabad, this place here you will get this Ajanta caves. Caves का मतलब होता है गुफा। इस तरह का गुफा वहां पे अवेलेबल है। ये देख रहे हो ना, ये सुड़ंग है, इसके अंदर पे जो है ना घर है, बहुत सारा डिजाइन किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। दिस इज हाउ। So this is the Ajanta caves which we have, and you have to write about this particular caves, this particular places. Okay, and these are especially the previous all historical places are made up of rocks only. वहाँ पे पत्थर का सारा चीज ज्यादातर चीजें बनाया हुआ रहता था, ठीक है। और इस तरह से पत्थर को काट काट के जो है ना बनाया जाता था, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे उस तरह का स्टैचूज मिल जाएंगे, बहुत सारे ये पत्थर का स्टैचू बना हुआ मिल जाएगा, अलग अलग इमोशंस का, अलग अलग गेस्टर्स का। तो ये हमारा अजंता केव्स के बारे में है, ठीक है। और ये यहाँ पे औरंगाबाद लोकेशंस में है ये प्लेसेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो है वो है जल महल। आप लोग देख सकते हो, ये महल इसलिए जल महल नहीं बोला जाता है कि ये जल में है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है देखो, चारों तरफ से पानी में ही इस महल को बनाया गया है। और एक महाराजा था जयप्रकाश नाम का, उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। तो जल महल को वाटर प्लेस भी बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। सो दिस प्लेस इज इन जयपुर सिटी, हम लोग का जयपुर राजस्थान में है, जहाँ पे ये जल महल हमारा है, ठीक है। सो दिस प्लेस इज actually around where revolved and unloosed at 18th century. So 18th century में ये बनाया गया था किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा, ठीक है, जयसिंह टू के द्वारा। यहाँ पे पहले जो राजा महाराजा का नाम होता था ना, तो इस तरह से हुआ करता था, जयसिंह वन, जयसिंह टू, मतलब उनका पेट बच्चे का नाम दे देते थे टू, ठीक है, उनके पोते का नाम दे देते थे थ्री, तो इस तरह से भी नाम दिया जाता था, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम तूफान है, तो अपना नाम का बेटा का नाम रख सकते हैं तूफान टू, तो इस तरह से नाम रखा जाता था, ठीक है। तो ये है हमारा जल महल, इस तरह का एक महल है जिसमें जल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे अवेलेबल है जल महल बताओ? राजस्थान में, ठीक है, जयपुर का, राजस्थान में, जयपुर सिटी में। इसके बाद हम लोग का ये जो है, यहाँ पे हम लोग का राजस्थान अवेलेबल है जल महल, ठीक है। देख रहे हो, जयपुर राजस्थान, अगर इंडिया का मैप में बात करें तो यहाँ पे है, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग को इस तरह से दिखाया जा सकता है कि ये प्लेसेस जो है इंडिया का, ये प्लेसेस आपको दिया हुआ रहेगा कि ये कौन सा प्लेसेस है, तो आप क्या बताओगे? ये जल महल है, ठीक है। या तो जल महल आपको दिखाने के लिए बोला जा सकता है, इंडिया का मैप दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे जल महल इंडिकेट करना है, सो यू हैव टू शो हियर। ओके, अंडरस्टूड। कहीं किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज आप लोग बताओगे, पूछोगे, ठीक है। कैन यू ऑल हेयर मी? मेरा आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now nice. So next which we have is the अग्रसेन की बौली। तो ये अग्रसेन की बौली जो है, एक्चुअली बौली मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? बौली मतलब होता है ना एक कुआं टाइप का होता है ना, जो चौड़ा मुंह वाला कुआं होता है, और उसमें जो है ना सीढ़ी बनाया हुआ रहता है अंदर जाने के लिए। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर था जो कि मतलब इस तरह से बना हुआ था, और इसमें ये देखो, ये जो है ना, ये सीढ़ी बना हुआ था, अलग अलग सीढ़ी बना हुआ था नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। यहाँ पे भी सीढ़ी है, यहाँ पे भी सीढ़ी है, उस तरह से यहाँ पे भी सीढ़ी है, आप देख रहे हो। तो इस तरह से नीचे जाने के लिए अलग अलग सीढ़ी बनाया हुआ था, और एक गुफा टाइप का है जो कि एक कुआं का गुफा टाइप का है। तो चौड़ा मुंह वाला कुआं का गुफा को बोला जाता है बौली। तो अग्रसेन नाम का एक राजा हुआ करते थे,
जो बनाए थे ये, इसके लिए उनका नाम पे इसका नाम पड़ा है अग्रसेन की बोली। और ये हमारा कहाँ पे अवेलेबल है? दिल्ली में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लोकल है, ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है, ठीक है। ये लोकल हेरिटेज है, तो लोकल ये के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो ये हिस्टोरिकल मोमेंट उतना ये नहीं है हम लोग का। स्पेशली अजंता का केव्स जो है वो उसमें आता है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके अलावा हम लोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हुमायूं टॉम्ब। ओके, टॉम्ब मतलब क्या होता है? एनीवन? मकबरा। इन हिंदी टॉम्ब इज कॉल्ड एज मकबरा। इंग्लिश में अगर बात करें तो, मकबरा। हाँ, इंग्लिश में अगर बोले तो एक अंडरग्राउंड ये होता है, बहुत बड़ा सा एक अंडरग्राउंड प्लेस होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है टॉम्ब। ओके, सो यहाँ पे भी हुमायूंस का जो टॉम्ब था ये भी दिल्ली में हमारा अवेलेबल है। और ये जो है, सर यहाँ पर रॉयल हाँ, ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है ये भी। और ये जो है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या पूछ रहे हो? पूछो। सर इसका आधा पार्ट रेस्टोरेंट है और आधा पार्ट रॉयल फैमिली के लिए। हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि ये इस तरह से प्लेसेस है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ अंदर में पहले का जमाने में क्या होता था ना, इस तरह का बहुत सारे प्लेसेस होता था। पहले क्या था कि लड़ाई वगैरह ज्यादा होता था, अभी के तरह का डिसिप्लिन्ड नहीं था पहले। और भी जो कानून व्यवस्था था वो तो कुछ अलग टाइप का था, मतलब तुरंत बहुत जल्दी लड़ाई वगैरह हो जाता था। तो इस तरह का काफी सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस हुआ करता था जहाँ पे मतलब छुप के या जहाँ पे इस तरह से सेफली रहा जा सकता था, ठीक है। तो ये जो टॉम था ये हमारे अभी भी दिल्ली में अवेलेबल है। और इसका ये जो है ना, इसमें गार्डन भी अवेलेबल है सेंटर में। और इसके अलावा ये मुगल एम्पायर द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है। एंड उसके बाद उनके सॉन अकबर जो है उसको कंप्लीट किए थे। और यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेसेस है जहाँ पे गार्डन भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जिस टॉम में गार्डन के साथ जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसका कलर एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड स्टोन्स और वाइट मार्बल्स दोनों को मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो पहले होता था ना कि पहले इस तरह से ब्रिक्स वगैरह से नहीं बनाया जाता था, ईंटा वगैरह से नहीं बनाया जाता था। जो भी टेम्पल्स वगैरह है, इस तरह से हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाया जाता था, बड़ा बड़ा पत्थर को काट के बनाया जाता था, ठीक है। जो भी इस तरह से गुफा वगैरह बनाया जाता था वो मैक्सिमम पत्थर या इस तरह से मार्बल्स से बनाया जाता था। पहले का घर में भी मार्बल्स ज्यादा यूज हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारा हुमायूंस टॉम्ब के बारे में है जो कि 1570 में बिल्ड किया गया था, ठीक है। और भी इस तरह का जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यू ऑल कैन सर्च अबाउट दोज ऑल, ओके। आफ्टर देन ये जो हुमायूंस टॉम्ब है ना, हाँ, उसके बाद आ जाता है हम लोग का गोल्डन फोर्ट के बारे में। तो गोल्डन फोर्ट जो है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा जैसलमेर सिटी है एक, जो कि राजस्थान में ही है। और राजस्थान में हम लोग का ये गोल्डन फोर्ट है। आप देख सकते हो गोल्डन मतलब गोल्डन कलर का ये पूरा फोर्ट दिख रहा है। और फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला होता है, ठीक है। किला स्टोन से बना हुआ। हाँ, तो ये फोर्ट मतलब होता है किला, तो गोल्डन कलर का किला है इसीलिए इसको गोल्डन फोर्ट नाम से जाना जाता है। और इट इज मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन एंड इट इज नोन एज सोनार किला। इन सोनार किला बोल के भी इसको जाना जाता है। और इसके अंदर जो है ना, हाउस है, मार्केट है, रेस्टोरेंट है, सारी चीज है इस फोर्ट के अंदर। वो जो बोल रहा था ना, वो हुमायूंस टॉम्ब के अंदर नहीं है, वो गोल्डन फोर्ट के अंदर है ना। गेस्ट हाउस। हाँ, गेस्ट हाउस वगैरह। तो आप देख सकते हो ये गोल्ड कलर का जो है ना, ये सारे टॉम्ब्स, ये सारे जो फॉन्ट है ये गोल्ड कलर का। इसके अंदर बहुत सारा मार्केट्स वगैरह अवेलेबल है। ये अंडरग्राउंड में बहुत लार्ज प्लेसेस है, ठीक है। यहाँ पे तो पिक्चर में उतना नहीं समझ में आ रहा है, जब जाओगे यहाँ पे, आप लोग राजस्थान वगैरह कभी जाते हो तो यहाँ पे घूमना, तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है ये, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्डन प्लेसेस। यहाँ पे बहुत सारे आदमी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहते थे या अभी रह भी सकते हैं, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है 1000 तक भी लोग जो है रहते हैं, तो रह सकते हैं। तो देयर आर हाउसेस, मार्केट, रेस्टोरेंट एंड गेस्ट इनसाइड इट। तो ये फोर्ट के अंदर हाउस, रेस्टोरेंट और लोग जो है रहते हैं वो। उसके अलावा हम लोग का जो नेक्स्ट हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, सन टेम्पल। हाँ, दैट इज सन टेम्पल। सो सन टेम्पल जो है ये हम लोग का कोणार्क का टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क सन टेम्पल, जो कि सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और हम लोग का ये उड़ीसा में है, सबको पता है। तो ये चैप्टर जो है ना स्पेसिफिकली जीके टाइप से आप लोग याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। हाँ, और ये जो है ना स्पेशली ये हिंदू का जो भगवान सूर्य देव होते हैं, गॉड सन जो होते हैं, उस पे बेस्ड है। और ये भी जो है एक बड़ा सा रॉक्स का जो है बनाया गया है, बड़ा सा पत्थर को काट के इसको बनाया गया है, ठीक है, दिस सन टेम्पल। आफ्टर देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस सन टेम्पल इज ये जो है ना एक कैरेट का जिसमें 12 व्हील्स ड्रॉन किया हुआ है, जहां पे 7 घोड़ा जो है ना वो इसको खींच रहा है। मतलब ये ना एक रथ का जैसा बनाया हुआ है, आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक रथ का स्ट्रक्चर का बनाया हुआ है, और इस तरह से 7 घोड़ा इसमें लगा हुआ है जो मिलके इस रथ को खींच रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कैरेट मींस रथ होता है, तो वो 7 कैरेट्स का बनाया हुआ है, और इस तरह से डिजाइन किया हुआ है इसको। मतलब सोच रहे हो कि एक पत्थर को काट के इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है, एक बड़ा सा रथ टाइप का बनाया गया है, जिसमें जैसे ऐसे लगेगा कि एक रथ जो है वो खींच रहा है 7 घोड़ा मिल के, ठीक है। तो ये जो है ना स्पेशली बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, और ये उड़िया कल्चर के लिए स्पेशली जाना जाता है। रथ यात्रा वगैरह देखना उड़िया कल्चर में ज्यादा मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो स्पेशली आज हम लोग ने देखा। बाकी का जो भी प्लेसेस है वो हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। और आज का होमवर्क में हम कुछ खास नहीं दे रहे हैं, आप लोग ये जो चैप्टर्स है इसको एक बार गो थ्रू करना, और जो भी हमारे और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है या जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हम लोग ने पढ़ा, इसके बारे में आप लोग और रिसर्च करोगे और इसके बारे में लिखोगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोग ने जो जो प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस पढ़ा, इसके बारे में आप लोग 5-5, 6-6 लाइन जो है लिखोगे अबाउट द sun temples, and then about the Ajanta caves, and about the Humayun's tomb and Golden Fort, and then this सन टेम्पल। इतना ही, सन टेम्पल तक लिखना है। तो 4 चीज के बारे में आप लोग को लिखना है, एक अजंता केव्स, देन हुमायूंस टॉम्ब, गोल्डन फोर्ट एंड सन टेम्पल। ओके, कहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखना ये कहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद इसके बारे में और जानकारी, आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इसके बारे में वो आप लोग लिख सकते हो। व्हाट सर, प्लीज टेल अगेन द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। ओके, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, UN, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख लेना है तो लिख ले सकते हो, ठीक है। सर, इन और EVS होमवर्क कॉपी, आप होमवर्क कॉपी में भी बना सकते हो या रफ वर्क कॉपी में भी बना सकते हो। रफ वर्क कॉपी जो भी आप यूज करते हो, मतलब फेयर कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर या फेयर चीज लिखना है, स्पेशली आप कोई भी क्वेश्चन में बना सकते हो। ओके, और कुछ डाउट्स किसी को प्रीवियस चैप्टर से या इस चैप्टर से, तो आप पूछ सकते हो, एनीवन, इफ एनीवन हैविंग एनी एल्स डाउट्स। ओके, okay then, very nice. Be ready for your next period if you have. Thank you for joining. Have a good time. Take care and bye bye. Thank you, sir. Thank you.